الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کریں گے. سورۃ الفاتحہ کے فضائل پہلے بیان ہو چکے ہیں اور اس میں بتا چکا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ اللہ رب العزت نے ایسی سورت قرآن کریم میں اپنے نبی کو عطا کی ہے کہ اس جیسی سورت تورات، زبور، انجیل اور باقی قرآن مجید میں کہیں اور نازل نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے. یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ الحمدللہ رب الانبیاء والمرسلین، یہ نہیں فرمایا. رب المسلمین نہیں فرمایا. رب المتقین نہیں فرمایا. رب الاولیاء والصالحین نہیں فرمایا. فرمایا رب العالمین، کہ وہ رب تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی ایسا رب جو صرف اس ایک کائنات کا رب نہیں ہے بلکہ تمام جہانوں کا تنے تنہا رب وہ اللہ رب العزت. اور انبیاء کا رب بھی وہی، متقین اور پرہیزگاروں کا بھی رب وہی، اور جو گناہگار ہیں ان کا بھی رب وہی ہے. ایسا رب ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی روزی عطا کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں جو فرعون نافرمان ہے اس کو بھی روزی عطا کر رہا ہے. ایسا رب ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی نعمتیں برسا رہا ہے اور روزی اپنی جو ہے وہ نمرود پر بھی بند نہیں کرے. تو ایسا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو انتہائی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. رحمان اور رحیم کی تفصیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتا چکا ہوں، تو اب دوبارہ اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا. آگے اللہ رب العزت فرما رہے کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم جزا اور سزا کا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ جو نعبد کا لفظ ہے عربی زبان کے اندر یہ فعل مضارع ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی آتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تو ہمیں تو صراط مستقیم پر چلا، ہمیں وہ راستہ دکھا جو صراط مستقیم کہلاتا ہے، سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیسا راستہ؟ الذین انعمت علیہم، وہ راستہ
वो रास्ता दिखा जो तूने अपने नेक लोगों को दिखाया, जिस रास्ते पर तूने अपने नेक लोगों को चलाया वो रास्ता हमें दिखा, हमें उस रास्ते पर चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ना कि उस रास्ते पर जिस ऐसे लोगों के रास्ते पर जिन पर तू गजबनाक हुआ, वला ज़ालिन, और ना ही गुमराह लोगों के रास्ते में। तो ये तो लफ्जी तर्जमा था सूरतुल फातिहा का। हदीस शरीफ में आता है कि हदीस कुदसी है। इमाम मुस्लिम ने इस रिवायत को नकल किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसी हदीस इरशाद फरमाई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, यक़ूलुल्लाहु तआला, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, इज़ क़ाल अल अब्दु, जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जवाब में फरमाते हैं हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की, मेरी हम्द बयान की। और जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की, मेरी तारीफ की है। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, बंदे ने मेरी तमजीद बयान की, मेरी बुजुर्गी और अजमत बयान की। फिर जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हाज़ा मा बैनी व बैन अब्दी, ये है वो चीज जो मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधी आधी। यानी कुरान करीम को शुरू करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आदाब बयान कर दिए कि सबसे पहले क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ की जाए। जब भी अल्लाह के सामने दुआ के लिए बैठें, अल्लाह से कुछ मांगने के लिए बैठें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मांगने का तरीका हमें बता दिया कि सबसे पहले हम्दो सना करें अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की हम्दो सना बयान हो। फिर अर्रहमान अर्रहीम, फिर उसकी सिफात बयान हो रही हैं कि वो रहमान भी है रहीम भी है। और फिर उसकी कुव्वत बयान हो रही है, उसकी ताकत बयान हो रही है, उसकी अजमत बयान हो रही है। मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा और सजा का मालिक। फिर उसके बाद फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहां पर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से वादा करता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, तुझ ही से मदद मांगते हैं और हमेशा मांगते रहेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदे और अपने दरमियान एक वादा लिया है इंसान से। नमाज के अंदर सूरह फातिहा हर नमाज का हिस्सा है, हर रकत का हिस्सा है। और हर रकत में जब किसी रकत की इब्तिदा होती है, तो इब्तिदा में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ये वादा ले रहे हैं मुझसे भी और आपसे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे और तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर इंसान कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चला दे, मुझे सिरात मुस्तकीम अता कर दे। तो ये बंदे और अल्लाह की जात के दरमियान एक अहद है, अगर हम इसको समझे तो। एक हदीस के मुताबिक मुफस्सिरीन में लिखा है कि पूरे के पूरे कुरान मजीद का निचोड़ सूरतुल फातिहा है। और सूरतुल फातिहा के अंदर जो ये आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये इस पूरे के पूरे कुरान करीम का और इस सूरतुल फातिहा का खुलासा है। ये वो मजमून है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारा का सारा कुरान उतारा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और यही वो मिशन है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी को अता किया। और इसी मिशन के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में अंबिया को भेजा कि तुमने जाकर लोगों को सिखाना है कि रब की इबादत कैसे की जाती है, और उनको इस बात का पाबंद बनाना है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए, और मदद भी तलब की जाए तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से। जैसे अरबी में कहा जाता है ना कि वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह,
اور जब भी सवाल करो तो अल्लाह से करो। वइज़स्तानता फस्ताइन बिल्लाह, और जब भी इस्तिआनत तलब करो, मदद तलब करो, तो सिवाय अल्लाह के और किसी से मदद तलब ना करो। इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह की करो, और मदद मांगो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो और किसी से नहीं। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब ये है कि सिर्फ अल्लाह से मांगना, उसी की इबादत करनी। ऐसा ना हो कि सिर्फ नमाज के अंदर तो हम कहेंगे इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं, लेकिन जब यहां से मस्जिद से बाहर निकलें, नमाज से फारिग हो जाएं, तो किसी और के सामने झुक जाएं। कोई खूबसूरत झंडा नजर आए तो उसके सामने झुक गए, और कोई ऊंची इमारत नजर आई तो उसके सामने झुक गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के एक और मकाम पर फरमाया कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। यानी तुम्हारी 24 घंटे की जो जिंदगी है, उस 24 घंटे की जिंदगी के अंदर जब भी दुआ करने के लिए हाथ उठाओ तो सिर्फ मुझसे मांगो, और जब भी इबादत का वक्त आए और इबादत करनी पड़े तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने झुको। ये है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो दुनिया भी मांगनी चाहिए अल्लाह से और आखिरत भी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दोनों काम सिखाए हैं। दुआ सिखाई हमें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, सबसे पहले दुनिया मांगने का हुक्म दिया कि मांगो दुनिया अल्लाह से, वफिल आखिरत हसना, और फिर आखिरत भी मांगो, वकीना अजाबन नार, और अल्लाह के अजाब से भी पनाह मांगो। अल्लाह ने हमें सिखाया है। तो दुनिया मांगना बुरा नहीं है, दुनिया भी मांगी जा सकती है, क्योंकि अल्लाह ने खुद बताया हमें कि दुनिया भी मांगो, आखिरत भी मांगो, और अल्लाह के अजाब से छुटकारा भी हासिल करने के लिए दुआ मांगो। हशाम बिन अब्दुल मलिक, ये बनु उमैया का बादशाह था। तो एक मरतबा वो खाना काबा का तवाफ कर रहा था, तो उसने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पोते को देखा, सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं। तो वो भी तवाफ कर रहे थे। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक वो उनके करीब आया और उनसे आकर कहने लगा कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। जब तवाफ करके वापस आए तो उसने एक दफा फिर आके कहा कि अगर किसी चीज की तलब हो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। तो हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि क्या मांगू, दुनिया मांगू या आखिरत मांगू? उसने कहा लाजमी सी बात है, मैं तुम्हें दुनिया ही दे सकता हूं, आखिरत तो नहीं दे सकता, दुनिया मांगो। कहा अल्लाह की कसम, जिस रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे भी दुनिया नहीं मांगी, मैं तुझसे कैसे मांगू? यहां पर मालिक यौमिद्दीन, अगर इस आयत को देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी हाकमियत बयान कर रहे हैं कि मैं रोजे जजा और सजा का मालिक हूं। जैसे कुरान करीम में एक जगह पर इशार फरमाया कि ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, कि उस दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बादशाही है। एक और जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे लिमनिल मुल्कुल यौम, कि आज किसकी बादशाहत है। एक हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत जब बर्पा होगी और सारी की सारी रूहें अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होंगी, इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और कहेंगे कि सारे के सारे इंसानों की और जिन्नात की सबकी रूहें निकाल लें, तो सबकी रूहें निकाल लें। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि जो बाकी फरिश्ते हैं, मिकाइल, इसराफील, जिब्राइल, इन तीनों की भी रूह निकाल ले, उनकी भी रूह निकाल लेगा वो। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कहेंगे कि तुम भी मर जाओ, उसको भी मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये आयत पढ़ेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी हुक्मरानी है। जब कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, कि आज सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत है। तो मालिक यौमिद्दीन ये ऐसी आयत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत को बयान कर रही है कि वो रोजे जजा सजा का मालिक है। क़यामत के दिन
जब सारे के सारे लोग अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, एक तवील हदीस है जिसको मुख्तसर में बयान करने जा रहा हूं। तो लोग जो है जमा होंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास कि आप हमारे लिए सिफारिश करें। वो ऐसा दिन होगा जिस दिन किसी की कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी। तो आदम अलैहिस्सलाम मना कर देंगे, तो लोग चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे कि आप हमारी सिफारिश करें। तो तवील हदीस है, इसका आखिरी हिस्सा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे इरफा रासक, अपना सर उठाओ, और क्या कहेंगे कि जो तुम मांगना चाहते हो मांगो। अपना सर उठाओ, वकुल तस्माओ, और जो तुम कहोगे तुम्हारी सुनी जाएगी। वसल तो होता, और सवाल करोगे तो तुम्हारे सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। जो तुम मांगोगे वो तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। वशफा तशफाओ, और जिसकी शफात तलब करोगे उसकी शफात कबूल की जाएगी, जिसके लिए भी शफात तलब करोगे। अब गौर से सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को कहा कि सर उठाओ, और ये नहीं कहा कि सर उठाने के बाद जो चाहे करो, जिसको चाहे जन्नत में ले जाओ, जिसको चाहे जहन्नम में ले जाओ, ये नहीं कहा। बाकायदा तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुम्हारा काम सजदा करना है, मैं मसजूद हूं, मुझे सजदा करना तुम्हारा काम। तुम्हारा काम सवाल करना है, तुम सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल के जवाब दूंगा। तुम शफात तलब करो, मैं शफात कबूल करूंगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी से ये कह रहे हैं कि क़यामत की इस खतरनाक घड़ी के अंदर भी अगर किसी ने कुछ मांगना है तो मुझसे ही मांगे। और अपने नबी को भी सिखा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं सर उठाऊंगा तो मैं अपने रब की पहले तारीफ बयान करूंगा, हम्दो सना करूंगा। और फरमाया कि वो हम्दो सना के अल्फाज मैं आज नहीं जानता, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत हम्दो सना के अल्फाज मेरे दिल में डालेंगे, और वो हम्दो सना के अल्फाज में पढ़ूंगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करूंगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे इरफा रासक, अपना सर उठाओ और सवाल करो मुझसे। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि तुम सवाल करोगे तो तुम्हारा सवाल पूरा किया जाएगा। तो अल्लाह के अलावा कोई भी सवाल को पूरा करने वाला नहीं है। इबादत के लायक अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। और एक हदीस के अंदर सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अरब के जो सरदार होते हैं उनके मानने वाले उनको सजदा करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, और कहा कि अंत आहक को यश जुदा का, आप इसके ज्यादा काबिल हैं कि हम आपका सजदा करें, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे ऊंची शख्सियत तो आपकी शख्सियत। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मेरी शरीयत के अंदर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं। और फिर फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, लौ कुन्तु आमुरु अहदन, अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को हुक्म देता अन यस्जुद लिअहदिन, कि वो सजदा करे किसी और को, अगर मेरी शरीयत में ताज़ीमी सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को करना का हक होता या जायज होता, तो मैं किसको हुक्म देता? फरमाया ला अमरतु निसाए, मैं अपने उम्मत की औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। लेकिन मेरी शरीयत में ताज़ीमी सजदा जायज नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि मेरी शरीयत के अंदर सजदा जायज नहीं है, चाहे वो ताज़ीमी हो या इबादत के लिए। जैसे एक शेर है ना शायर का, कहते हो जिसमें इबादत का धोखा, वो जिसमें इबादत का धोखा मखलूक की वो ताज़ीम न कर, जो खास रब का हिस्सा है बंदों में उसको तकसीम न कर। सजदा जो है वो खास अल्लाह के लिए होना चाहिए, सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसकी कहीं पे भी शरीयत में कोई हुक्म नहीं।
चाहे वो मज़ारात पे सजदा किया जाए। वालिदैन की ताज़ीम जरूरी है मगर सजदा जायज नहीं है। उलमा की ताज़ीम जरूरी है मगर सजदा जायज नहीं है। और फुकहा की ताज़ीम जरूरी है, आइम्मा इकराम की ताज़ीम जरूरी है, अंबिया और सालेहीन और सहाबा इकराम की ताज़ीम जरूरी है मगर सजदा जायज नहीं। किसी हाल में सजदा जो है वो अल्लाह के अलावा किसी और मखलूक के लिए जायज नहीं। चाहे जितनी भी ताज़ीम दिल के अंदर, जितनी भी इज्जत और मकाम दिल के अंदर हो, सजदा किसी और को नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं। तो इसलिए फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे और तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। 24 घंटे की जिंदगी में तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे, हर मामले के अंदर। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मेरी मदद तलब करो नमाज और बिस्सब्रि वस्सलात, सबर और नमाज से। तो सबर और नमाज जो है ये चूंकि अल्लाह का गैर है, इसलिए अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना जायज नहीं। कुछ लोग ये दलील देते हैं, इंतहाई जहालत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि अगर मुझसे मदद मांगनी है तो किसके जरिए मांगो? सबर के जरिए। जब तुम सबर करोगे, सबर करने के बाद जब मेरे सामने हाथ उठाओगे तो मैं फौरन तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। सबर क्या है? मुसीबत आने के बाद, मुसीबत आने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना कि या अल्लाह तूने इससे बड़ी मुसीबत मुझे नहीं दी, ये तो छोटी सी मुसीबत, और मेरे गुनाहों को अगर सामने रखा जाए तो ये मुसीबत कुछ भी नहीं। अंबिया पर मुसीबतें आई, सिद्दीकीन और शुहदा पर मुसीबतें आई, मगर कोई भी ऐसा नहीं था जिसने अल्लाह के रास्ते को छोड़कर या अल्लाह के सामने सजदा करने के अलावा किसी और के सामने सजदा करना शुरू कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया के किस्से बयान किए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितने मसाइब आए, कितनी मुश्किलात आई, हर मुश्किल में सबर किया, और सबर करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जब आजिज़ी पेश की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तमाम सबर का बदला उनको अता किया। तो अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। तो ये सारी बात करने के बाद फिर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हम तुझसे सीधा रास्ता तलब करते हैं। सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में अपने नबी से क्या फरमाया? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। ये है वो सिरात मुस्तकीम, अपने नबी को सिखाया। और दूसरी जगह क्या फरमाया? व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। तो सिरात मुस्तकीम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबिया को सिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या फरमाया? इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफम वलम यकु मिनल मुशरिकीन। और आगे फरमाया शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम। जितने भी अंबिया आए हैं, हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिरात मुस्तकीम समझाया है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिहा के शुरू में ही, इब्तिदा में ही हमें बता दिया, कुरान शुरू करने से पहले ही, कि सूरह फातिहा के अंदर आप सिरात मुस्तकीम अल्लाह से मांग लें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया तो क्या फरमाया? इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक मेरा रब और तुम्हारा रब अल्लाह है। फअबुदू, बस उसी की इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, और आगे वाज़ेह कर दिया कि यही सिरात मुस्तकीम, यानी अल्लाह के से मांगना और अल्लाह के सामने झुकना, उसकी इबादत करना, यही सिरात मुस्तकीम। फिर फरमाया कि अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? इसको बाकायदा तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमा दिया, इसकी तशरीह बयान की कि अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। चार तबके बयान किए कि चार तबके ऐसे हैं जिनको सिरात मुस्तकीम
पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ये सिरात मुस्तकीम पर है। सबसे पहला तबका अंबिया का, और उसके वाकयात मैंने आपके सामने बयान कर दिए कि अल्लाह ने हर नबी को बताया कि सिरात मुस्तकीम क्या होता है। तो पहला तबका है सिरात मुस्तकीम पर चलने वालों का, अंबिया का। उसके बाद सिद्दीकीन, उसके बाद शुहादा, और चौथा तबका है सालिहीन का। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अंबिया के बाद सिद्दीकीन का जो तबका है, सिद्दीकीन में सबसे बड़े सिद्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। सिद्दीकीन, अंबिया के जितने भी सिद्दीकीन हैं उन सब के सरदार हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। तो दूसरा तबका अंबिया के बाद क्या होगा, सिद्दीकीन का। उसके बाद शुहादा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम शहीद, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सोम शहीद, और हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा चहारुम वो भी शहीद। ये तीनों शहीद हो गए। तो पहला तबका अंबिया का, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का, और उसके बाद शुहदा का, ये तीन शुहदा है। और उसके बाद जितने भी सहाबा इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे, वो 1.25 लाख के करीब सहाबा की तादाद है, वो सारे के सारे सहाबा सालिहीन में शामिल होते। कुरान करीम में इन तबकों को बता रहा है कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, जो इनके रास्ते पे चलेगा वो सिरात मुस्तकीम पर है, और जो इनके रास्ते से हट गया वो सिरात मुस्तकीम से हट गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सहाबा कराम ने पूछा कि मस्सिरातुल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम क्या है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मा अलैहि आना व अस्हाबी, वो आमाल, वो काम जिन पर मैं अमल कर रहा हूं और मेरे सहाबा अमल करेंगे, वो सिरात मुस्तकीम। तो आज की इस दर्स के अंदर सूरह फातिहा की तफसीर बयान की गई, और अब आप सबसे गुजारिश है कि आप मुझे ये बताएं, कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या हम सूरतुल फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम से कुरान की तफसीर शुरू करें, या 30वें पारे के अंदर सूरतुल नास से शुरू करें, क्योंकि वो छोटी सूरतें हैं। तो हर दर्स के अंदर 1 या 2 सूरतों की आराम से तफसीर की जा सकती है। आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि हम अलिफ लाम मीम से शुरू करें कुरान को, या फिर आखिरी पारे अम्मा पारा के अंदर सूरतुल नास से शुरू करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।